Hello my dear students, welcome to once again. Uh, dear students, as you know that you have to solve equation of motions, problem based on equation of motions. In my previous video, uh, I have solved some numerical problems based on the equation of motions. So dear students, as you have derived the equation of motion by using graphical methods in my previous video, now look at some problems totally based on the graphical ways. You have to only see the graph and solve the graphical numerical problem totally based on that. So you have to just solve the questions totally based on the graphical ways. Look at the graph. Here is the one sample problems for you. Study the speed time graph of a body और इस बेसिस पे आपको कुछ आंसर देने होंगे, ठीक है. एंड यू आर नोन टू नो यू आर नोन all the graphical representations ki how to represent the graph of two quantities by using time distance, by using speed and time. So speed and time, if you are treated speed and time, so it means you are considering the accelerations, and if you are taking distance and time, it means you are taking speed. So dear students, study the speed time graph of a body. Speed time graph means speed is vary in this side, ठीक है. Speed is going on this side and time is this side. So you will have to analyze the graphical representations and understand the graph very well. So here is any object which is starting its motion from origin and acquires the speed 6 meter per second. Speed already will be in meter per second because meter per second is the SI unit. तो जीरो से इनिशियल से शुरू होता है, ए तक जाता है फाइनल, ठीक है. फिर यहाँ से देखिए उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है क्योंकि ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है. फिर यहाँ से वो रिटायर्ड हो रहा है. रिटायर्ड मतलब है डिक्लाइन हो रहा है, फाल हो रहा है नीचे, ठीक है. ये कहाँ पे आ रहा है, 16 पे आ रहा है. तो डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दैट हियर प्रॉब्लम्स. फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA. OA किस प्रकार का मोशन बता रहा है. डियर स्टूडेंट्स, as you know that this is the time and here is a considered speed. So you will find, you are looking here that there is a straight line between two axes. Then you can find out confusion that this is the uniform acceleration. So here OA is the uniform acceleration is represented here, ठीक है. You will have to only write during OA is considered as a uniform acceleration. B, what type of motion is represented by AB. AB किस प्रकार का मोशन बता रहे हैं. देखिए AB का ग्राफ आपको जब मैंने बताया था ऐसे कि स्पीड में ऐसे कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे स्पीड तो इंक्रीज हो नहीं रही है, स्पीड इज ए कांस्टेंट, ठीक है. यहाँ पे स्पीड देखिए व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB. AB किस प्रकार का मोशन बता रहा है. AB इज यू कैन look here, there is a straight line, ठीक है. ये which is parallel to the axis of x. x axis की ये क्या है, पैरेलल है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है आपको ऐसे. तो इससे आपका क्या कंक्लूजन निकालोगे, इससे ये कंक्लूजन निकालोगे कि ये स्पीड जो है वो क्या हो रही है, कांस्टेंट हो गई है क्योंकि टाइम तो इधर एक्सटेंड हो रहा है लेकिन स्पीड इधर एक्सटेंड नहीं हो रही है. तो दिस इज द कांस्टेंट स्पीड. व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC. BC क्या मोशन बता रहा है. तो BC आप देख सकते हो कि ये डिक्लाइन यहाँ पे नीचे फॉल हो रहा है. दिस साइड इज डिक्रीजिंग, तो देयर इज अ रिटार्डेशन. अब आप क्या कंसीडर करोगे, स्पीड और टाइम में ग्राफ खींचा गया है और वो डिक्लाइन हो रही है, तो यानी स्पीड फिर डिक्रीज हो रही है. तो डिक्रीज इन स्पीड में पर यूनिट टाइम इज नोन एज द रिटार्डेशन. तो यहाँ BC क्या बता रहा है, रिटार्डेशन बता रहा है, ठीक है. अब फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. एक्सेलरेशन निकालना है. एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, देखिए डी वाला. एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम. तो चेंज इन स्पीड कहाँ हो, 0 से वो 6 गया, तो यानी स्लोप ऑफ लाइन अगर आप निकालोगे तो यहाँ देखो मैक्सिमम स्पीड कितना गया, 6. तो 6 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड, यू विल राइट हियर, अपॉन टाइम इज 4, 0 to 4. तो 6 माइनस 0 दैट इज 6 अपॉन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कितना जाएगा, डिवाइड दिस 6, 4 1 जा 4, 2 डेसिमल 4 5 जा 20.
1.5 meter per second square. 1.5 meter per second square will be its acceleration. ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी. ए से बी तक जाने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगी. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड मीन्स द एरिया साइडेड बाय द रीजन. अगर इसमें हम यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे देखते हैं तो ये हमको क्या मिलता है, एक रेक्टेंगुलर मिलता है, रेक्टेंगुलर शीट मिलता है. तो रेक्टेंगुलर शीट में आप यहाँ देखोगे कि ये कितना है, 4 से 10 तक जाने में कितना जाना पड़ा, तो यहाँ 6 हो जाएगा. दिस विल बी कंसीडर 6. और यहाँ से देखिए 0 से ये मैक्सिमम यहाँ 6 गया, इधर 6 है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. देखिए ई नंबर वाले डिस्टेंस ट्रेवल्ड मीन्स एरिया इनक्लोज्ड. तो 6 इंटू 6 यानी 36 मीटर. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड. वो ए टू बी जाने में कितना डिस्टेंस लेगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी, वो 36 मीटर. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम. It is very easy to find out the solution totally based on the graphical base, because you have to just consider the graph very well and carefully while solving the numerical problems, because these are the so easy problems which you can find out the solution in very easy way. So you will have to only consider over the numerical problems ki what are the informations have been given there, because sometimes you will get confused, but don't be confused there. These are the simple problems which you will have to solve. Thank you, students.